تیرے سنت کی جب بھی سواری چلے دیوبندی کے سینے پہ یاری چلے، جب وہ بن کے رضا کی کٹاری چلے، جب وہ بن کے رضا کی کٹاری چلے، جب وہ بن کے رضا کی کٹاری چلے تو سانس بھی دیوبندی کی بھاری چلے، سانس بھی دیوبندی کی بھاری چلے۔ ہیلو جی کیا جناب خیریت سے ہیں؟ ہاں بڑھیا. کون؟ میں بول رہا ہوں ابھی آپ کا یوٹیوب پر دیکھ رہے تھے ایک پروگرام. اچھا جی. ویسے آپ کون؟ اچھا جی میں جھارکھنڈ سے بول رہا ہوں. اچھا اچھا. آپ کا نام؟ ہمارا نام شاہد ہوا. شاہد. اچھا جی. آپ کا مسلک؟ مشلک دیوبند سے ہم ہیں. اچھا اچھا جی بولیے. بولنا یہ تھا کہ آج عید کا دن تھا اچھا ہے نا، اور یہ نفرت بھری آواز جی بہت تکلیف دیتی ہے بھائی. جی. ہم، تو اس نفرت کو ختم کر دو نا. اہل سنت اس والجماعت کے نفرت ساتھ ہو جاؤ، رسول اللہ کے وفادار بن جاؤ. بے شک رسول اللہ کے وفادار ہے ہی، لیکن اب یہ جماعت میں شامل ہو جاؤ، وہ جماعت میں شامل ہو جاؤ، یہ ہم اور آپ نہیں کر سکیں گے بھائی. تو رسول اللہ کا وفادار رسول اللہ کی شان میں کمی نکالے گا یا شان کو بیان کرے گا؟ الحمدللہ اس کی شان میں ہمیشہ بیان کرے گا. ہاں تو پھر آپ نے سنا ہوگا کہ دارالعلوم دیوبند کا وہ عالم جو کہ حضور کے ایک کمال کو تو تسلیم کر گیا، دوسرے کمال پہ اڑ گیا. دوسرے کمال کو تسلیم اس نے تسلیم نہیں کر لیا. اور ٹھیک ہے، اس نے تسلیم نہیں کر لیا. آپ کی سوچ غلط ہے بھائی. اس نے کہا ان کی بات کو وہ آپ نے ان کی بات کو سمجھا نہیں. شاہد بھائی کیا نام لیا آپ نے؟ شاہد صاحب. جی جی بولیے. اچھا اچھا. تو شاہد صاحب میں نے اس سے پوچھا تھا کہ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر مانتے ہو یا نہیں؟ تو بولا ہاں مانتا ہوں. جی کس نظریے پر مانتا ہے آپ نہیں نہ بات کر پائے. اس نے جو کہا حاضر ناظر میں مانتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن کس نظریے سے مانتا ہوں آپ نے اس پر بات تو نہیں کیا. آپ مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں یہ بتائیے. میں بھی نہیں مانتا. آپ حضور کو حاضر و ناظر نہیں مانتے؟ نہیں مانتا. اچھا چلیے آسان سے بات پوچھ لیتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب بعد وصال جو آپ اپنی قبر مبارک میں آرام فرما رہے ہیں، جی جی بولیے. قبر انور میں جو حضور آرام فرما رہے ہیں، جی وہاں سے اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے، اللہ رب العزت کی عطا سے اپنے کسی بھی امتی کے پاس آ جا سکتے ہیں یا نہیں؟ آپ قرآن کی ایک آیت پڑھ کے بتا دیجئے. ہاں یا نہ میں جواب دیجئے بس. میں آپ جب اس کا پوچھ رہے تو آپ ایک قرآن کی آیت پڑھ کے بتائیے. اس آیت سے وضع ہوتی ہے کہ وہ آ سکتے ہیں، جا سکتے ہیں. اچھا تو آپ کا کیا عقیدہ ہے، کیا نظریہ؟ عقیدہ کو چھوڑ دیجیے، عقیدہ کو چھوڑ دیجیے، عقیدہ اپنی جگہ رہنے دیجیے. آپ ایک قرآن کی آیت پڑھ کر کے ہم کو سنائیے کہ ہاں اس آیت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ آ سکتے جا سکتے ہیں. آپ کی آواز مجھے جانی پہچانی سے لگ رہی ہے، شاید میری آپ سے بات ہو چکی ہے. نہیں، ہماری پہلی بار آپ سے بات ہو رہی ہے. کھائیے خدا کی قسم کہ آپ سے میری پہلی مرتبہ بات ہو رہی ہے. تو آپ بتائیے کہاں پر اب سے ہم سے بات ہو چکی ہے؟ میری آپ سے بات ہو چکی ہے اور مجھے آپ کی آواز جانی پہچانی سے لگ رہی ہے. میری بات تو تم سے ہو گئی ہے، اب یہ پتہ نہیں کب ہوئی ہے. ہاں اچھا بتائیے خدا کی قسم کھا کے کہ آپ سے میری بات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ ہوئی ہوگی، ہمیں اندازہ نہیں ہے. بہت سارے لوگوں سے ہماری بات چیت ہوتی ہے. اچھا اچھا. تو کیا نام بتایا تھا راشد صاحب آپ نے؟ جی راشد بول رہے ہیں نا؟ راشد صاحب؟ شاہد بھائی. اچھا شاہد بھائی. یار میری آپ سے خیر بات ہو گئی ہے، آپ کی آواز جانی پہچانی لگ رہی ہے اور آپ اس وقت بھی میری بات کو نہیں سن رہے تھے. جی بولیے. میں یہ کہہ رہا ہوں میری بات آپ سے ہو چکی ہے اور آپ اس وقت بھی میری بات کو نہیں سن رہے تھے. میں پوچھ رہا تھا اس کا جواب بھی نہیں دے رہے تھے، اپنی طرف سے ہی سوال کیا کرتے تھے آپ اس وقت بھی. نہیں جواب کیا سوال؟ آپ سوال جو ہے وہ کریے گا، حق والی سوال ہوگا، انشاءاللہ ضرور اس کے جواب دیں گے. مگر
अरे पहले मैं ये तो सोचूं कि आप कौन है, किसकी आवाज लग रही है मुझे। मैं चक्कर में पड़ गया हूँ। मुझे आपकी आवाज जानी पहचानी लग रही है, मेरी आपसे बात हो चुकी है। किस अच्छा टॉपिक पर हुई चलिए थी? चलिए, मैं पहचान लूंगा। चलिए आप बात कीजिए, मैं खुद ही पहचान जाऊंगा आपको। चलिए ठीक है। तो शाहिद साहब, जी बोलिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कब्र मुबारक से अपने किसी भी उम्मती के पास आ जा सकते हैं या नहीं? हाँ या ना में जवाब दें, नहीं या हाँ। आपका क्या अकीदा है? मेरा तो है अल्लाह की अता से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जिस अच्छा, उम्मती की ये हमें किस्मत समझा जगाना दीजिए। चाहे वो जगा सकते हैं। आप ये हमें समझा दीजिए, अल्लाह की अता क्या चीज है, हमको ये बताइए। अल्लाह की अता ये चीज है कि अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से आपकी किस्मत लिखी है। अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी किस्मत में बहुत से आपको इख्तियार अता किए हैं। आप अगर चाहे तो मुझसे बात करें, ना चाहे तो ना करें, कॉल काट के चले जाएं। तो बगैर अल्लाह की अता से कुछ हो सकता है, ये पहले आप बताइए। तो मैं भी तो खुद कह रहा हूँ इस बात को कि अल्लाह की अता से हुजूर अपने किसी भी उम्मती के पास आ जा सकते हैं या नहीं। अब बातें विशाल, बादे विशाल, आपका क्या नजरिया है? मेरा तो है हाँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जिस उम्मती की किस्मत को जगाना चाहे जगा सकते हैं, किसी के पास भी आ जा सकते हैं। चलिए, आपका बातिल अकीदा है तो आपको मुबारक हो। तो ये मेरा बातिल अकीदा है ना? बेशक। देवबंद वालों का तो ये अकीदा नहीं है ना? जी नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, जब हुजूर के लिए देवबंद वालों का ये अकीदा नहीं है तो फिर किसी और के लिए भी नहीं होना चाहिए? तो घुमाइए नहीं। घुमा नहीं रहा हूँ। नहीं घुमाइए नहीं, सीधी राह पर रहिए ना, घुमाइए नहीं। अच्छा यार ये बताइए, आपकी आवाज मेरे समझ में आ गई है। ये क्या नाम है, रफीक कुरैशी पुलिस सर्विस तो नहीं बोल रहे हैं आप? कहाँ से? रफीक कुरैशी पुलिस सर्विस झारखंड। जी हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ। रफीक कुरैशी बोल रहे हैं ना, पुलिस सर्विस? जी जी। अपना नाम तुमने शाहिद क्यों बताया? इसलिए कि मैं देखना चाह रहा हूँ कहाँ तक आप पकड़ सकते हैं। देखिए जब पकड़ने आपने ना कहा पकड़ कि ली मैं तो आवाज बात, पकड़ दूं, मैं आपने कहा मैं आवाज पकड़ सकता हूँ, मैं ये देखना चाह रहा था कि आप कहाँ तक पकड़ सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, आपने देखिए उस टाइम तो ये बात हुई ही नहीं थी कि मैं पकड़ लूंगा या नहीं पकड़ूंगा। आपने कैसे कहा? बात आपने करते कैसे करते कहा? आपसे जी। बात करते करते आपकी आवाज मेरे दिमाग में आई कि यार नहीं, बात तो मतलब हुई भी लग रही है। आप सही जगह पहुंचे। नहीं तो आप एकदम सही जगह पहुंचे। एक मिनट देखिए, आप जी। इतने बड़े समझदार आदमी हो कि आपने झूठ क्यों बोला? आपने अपना नाम क्यों झूठ छुपाया? इसलिए बोला, झूठ मैं नहीं छुपाता, लास्ट में मैं कहता, लेकिन आपने जो ऐसा कहा नहीं कि है। मैं आवाज को देखिए, सुनना चाहता हूँ, लेकिन हम ये देखना चाहते थे कि आप पता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, मैंने तो उस वक्त कहा ही नहीं। सिर्फ क्या? आपसे बात करते करते मेरे दिमाग में आवाज जो है आपकी खन की कि नहीं यार, इनसे तो मैं बात कर चुका हूँ कभी। जी हाँ, आपसे हमारी बात हो चुकी है। आप तो मना कर रहे थे। नहीं, हम वो देखना चाह रहे थे कहाँ तक जा रहे हैं आप। ऐसा नहीं है साहब, रफीक साहब, जी नहीं, ऐसा ही है। क्योंकि उस वक्त भी आप इसी तरह की बहस कर रहे थे कि उलझाइए मत, और अब फिर आपने यही बात कहती कि उलझाइए मत। उलझाइए मत। जी जी, अभी भी मैं कहता हूँ उलझाइए मत। जनाब रफीक साहब, यार मुझे हैरत हो रही है आप पे कि आपके सब लोग ऐसे ही क्यों होते हैं? ऐसे होते नहीं है, आपका सोच गलत है। अच्छा एक मिनट, ये बताइए, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने किसी उम्मती के पास नहीं आ जा सकते बकौल देवबंदी, जी, तो फिर देवबंदियों का कोई बुजुर्ग आ जा सकता है या नहीं? ये बताइए आप सीधा सीधा। आप फिर वही फिर घुमा रहे, आप बुजुर्ग जी, तुम पुलिस सर्विस हो, हमें पूरे थाने का मत लगाइए, पूरे थाने का निजाम और समझाना पड़ेगा। मैं समझाऊंगा इंशाअल्लाह। करिए, क्यास पर बात मत करिए। मैं कयास की बात नहीं कर रहा हूँ, आप पुलिस सर्विस की नौकरी मैं समझाऊंगा आपको कि वो आप मत समझाइए। पुलिस का मकाम क्या है? जैसे आप चोरों को पकड़ते हैं ना, मैं ईमान के चोरों को पकड़ता हूँ। कुछ नहीं पकड़ते आप, कुछ नहीं पकड़ते। देखिए, पहली बात तो मैंने आपकी चोरी है पकड़ी कि आपने अपना नाम गलत बताया। अब मैंने जान से बताया कि मैं कहाँ तक जा सकता हूँ या आप कहाँ तक जा सकते हैं, उसको ये कर सकते हैं। उस वक्त तो ये बात थी ही नहीं। वो थी नहीं, लेकिन मैं जान रहा था। क्या जान रहे थे आप? आवाज को पकड़िएगा।
अच्छा, मैं आपको इसी से पहले से जान इल्म रहा था था। क्या? मैं आपकी आवाज को पकड़ लूंगा। जी, और आप बोलिएगा क्या तुम्हें इल्म गायब है? बोल दीजिए, ये सवाल भी कर दीजिए आप, क्योंकि उल्टपटांग सवाल करना आपकी आदत है। अरे यार उल्टपटांग रफीक सवाल भाई, करना आपकी आदत है कि नहीं? उल्टपटांग सवाल करके यूट्यूब पर डालना, लोगों को जलील करना। अच्छा नूर भाई, इससे क्या मिलता है पहले बताइए? आप एकदम एक ठगी की बात तो बताइए। करके मुझे बड़ी खुशी हेलो मिलती हेलो, है। सुनिए ना, सुनिए मेरी बात सुनिए। जी, इससे क्या मिलता है आपको? मुझे बड़ी हम ये खुशी कभी नहीं मिलती है, कहेंगे, मुझे बड़ा हम ये नहीं कहेंगे, हम ये कभी नहीं कहेंगे कि आपने यूट्यूब पर डाल करके इसका कमाई किया, ये किया, वो किया। मुझे मालूम है कि कितना कौन कमाई कर रहा है यूट्यूब से, नहीं कमाई, सारा इल्म हमको है, ये नहीं कहूंगा मैं। लेकिन ये सब हरकत करने से क्या मिल जाता है, ये पहले बताइए। मुझे बड़ी खुशी मिलती है, बड़ा अच्छा लगता है जब ये खुशी देवबंदी मिलती है, अपनी बातों में खुद फंस जाते खुशी हैं। मिलती जिस तरह है। से पुलिस सर्विस रफीक कुरैशी फंसे, और रफीक कुरैशी ने खुद अपने आप झूठ बोला कि मेरा नाम शाहिद है, और मैं खुद बोल रहा हूँ कि हाँ, मैंने अब कहा कि मेरा नाम शाहिद है। मैं कहा, इसको आप प्रचार क्यों कर रहे हैं यूट्यूब पर डालने के लिए? मैं खुद कह रहा हूँ अपने मुंह से कि हमने तो फिर खुद कहा कि मेरा नाम शाहिद है। पुलिस सर्विस होके 4 आदमी में उठने बैठने वाला इंसान, मुझे नहीं लगता कि 4 आदमी में उठने बैठने वाला इंसान ऐसी हरकतें करेगा। इससे भी ज्यादा गंदी हरकत करना पड़ता है। विभाग को आप देखे कहाँ है? अच्छा, तो ये थाने का मुजरिमों को निकालने के लिए बहुत कुछ निकालना पड़ता है। हाँ, बात तो सही है, मगर नूर हसन का भी यही काम है रात दिन, अल्हम्दुलिल्लाह। आपके जैसे जो ईमान के चोर है ना जी, आपके जैसे जो ईमान के चोर लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, उन्हें उनके अंदर का जो अंदरूनी मामला है ना, वो अल्हम्दुलिल्लाह नूर हसन निकालता है। ये गलत फहमी आपका है। नहीं रफीक कुरैशी साहब, ये गलत फहमी नहीं है। आप दुनिया के चोर को पकड़ते हैं, मैं ईमान के चोर को पकड़ता हूँ। नहीं पकड़ पाते हैं आप। वो मेरा यही काम है। वो सलाह, अल्लाह ने आपके अंदर वो सलाह। अच्छा, मैंने आपको पकड़ा कि नहीं पकड़ा? चलिए गवाही, दुनियावी बात, मैं आप ही से गवाही लूंगा, मैं गवाही आप ही से लूंगा। हम तो आपकी चोरी मैंने पकड़ी कि नहीं पकड़ी? गवाही देने की क्या बात, मैं तो खुद कह रहा हूँ। तो फिर मैं तो खुद मैंने आपकी चोरी पकड़ ली, मैंने कितने भी कलर बदल के तुम आ जाओ रफीक कुरैशी साहब, कितने भी तुम कलर बदल के आ जाओ, कितनी भी वर्दी तुम बदल के आ जाओ, नहीं आ रहा हूँ। मैं खुद कह रहा हूँ कि मैंने कहा कि मैं शहीद हूँ। उसके बाद हमने कहा कि आप जब आवाज को, मैं जानता कि मतलब कि आप आवाज पकड़ेंगे। मुझे लगा आपकी बातों से कि यार ये आवाज मेरे दिमाग में खटक रही है, आवाज है। मेरा नंबर आपके पास सेव है, ये भी मैं जानता हूँ। आप जनाब, टू कलर टोन में आपका मेरा नाम भी आया होगा, मैं ये भी जानता हूँ। देखिए क्योंकि मैं जब कमेंट करता हूँ तो बाजाफ्ता आप कमेंट में हमें मेरे नाम से आप हमको जवाब देते हैं। हाँ, रफीक कुरैशी आपका यूट्यूब में नाम लिखा है, मगर यहाँ पे तुम्हारा नाम नहीं लिखा है। और ना इस वक्त मेरे पास ट्रू कॉलर है। ट्रू कॉलर मेरे पास था, मगर जब मैं ट्रू कॉलर इस पे लगा लेता हूँ, पता नहीं क्या बात है, रिकॉर्डिंग बंद हो जाता है, इसलिए मैंने उसको हटा दिया। अच्छा अच्छा, मगर तुमसे मैंने बात की थी, दिमाग में खटक रही थी बात कि नहीं मैंने बात की है। जी जी हाँ, मगर मुझे वो बात याद आ गई कि तुम जो उस टाइम वहां कह रहे थे कि नहीं घुमाओ मत, उलझाओ मत, ये मत करो, वो मत करो, मुझे सारे मैंने कहा यार ये वो लग रहा है। हाँ, और तुम्हारा जिक्र कई लोग मुझसे कर भी चुके हैं फोन करके। अच्छा, क्या जिक्र कर चुके हैं भाई? यही कि वो अपने मुल्लाओं के लिए तो इल्म गैब मान रहे हैं, मगर अल्लाह के नबी के लिए इल्म गैब मानने को तैयार नहीं, और बार बार यही कह रहे थे अरे तुम उलझा रहे हो, फंसा रहे हो, मुझे उलझन में मत डालो, मुझे चक्कर में मत डालो। अभी भी मैं कहता हूँ, बताइए मत, साफ सुथरी बात बताइए, आवाम को भी बताइए साफ सुथरी बात। तो अब मुझे ये बता दीजिए, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र मुबारक से कहीं दूसरी जगह आ जा नहीं सकते, तो फिर दारुल उलूम देवबंद का कोई आलिम आ जा सकता है मरने के बाद? ये फिर आप वो कहानी उठाइएगा, फिर वही बात, कैसे चले आए, वो कब्र से कैसे निकल गए, ये सब मत बरगलाइए, ये सब आपकी ये कहानी गढ़ी हुई सारा चीज। रफीक कुरैशी साहब बोलिए, ये देखिए पुलिस थाने में आप ये किसी मुजरिम को तो उल्टा सीधा पढ़ा के कर सकते हैं, वो कहते हैं ना उल्टी हुई पुलिस की और सीधी हुई पुलिस की, समझे? डंडे के सामने किसी दुनिया के मुजरिम को तो आप डरा सकते हो, बहका सकते हो,
मगर यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिपाही को नहीं डरा सकते। सिपाही हो कहाँ? अल्हम्दुलिल्लाह हम हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिपाही। नहीं है, नहीं है, आप नहीं है, नहीं है, ये मेरा दावा है और मेरा दावा 100% है कि आप नहीं है। अगर आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिपाही होते, बात नहीं आपकी, मैंने खाने में चलाइएगा। अगर आप होते हैं, अगर आप होते तो आप उनकी सुन्नतों पर पहले अमल करते। रफीक कुरैशी साहब ये सब अपने थाने में चलाइएगा कि नहीं है या है, ये सब अपने थाने में चलाइएगा है या नहीं है, ठीक है। वो मुझे मालूम है, आप सीधा सीधा मुझसे बात कीजिए, बात कर रहा हूँ, आप सीधा सीधा मुझसे बात कीजिए। जब रसूलुल्लाह कहीं आ जा नहीं सकते, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं नहीं आ जा सकते अपनी कब्र मुबारक से, तो फिर ये दारुल देवबंद का मौलवी रशीद अहमद ये मौलवी कासिम ननौतवी कैसे आ गया और झगड़ा मिटा कर कैसे चला गया? इसके बारे कोई बात आपसे नहीं करेंगे। ऐसे कैसे नहीं करेंगे? नहीं कैसे नहीं करेंगे? मैं करना चाहता हूँ, मैं सीधी ही बात कर रहा हूँ। नहीं ये टेढ़ी बात है। अरे टेढ़ी कैसे? वाह वाह क्या बात है रफीक कुरैशी साहब, मीठा मीठा हाफ हाफ और कड़वा कड़वा थू वाह। नहीं, जब मालिक जिसके चीज मीठा मीठा हाफ हाफ और कड़वा कड़वा थू मैं बात क्यों करूँ? करोगे जरूर करोगे। या तो मानो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जिक्र उम्मत के पास आ जा सकते हैं और नहीं आ जा सकते आप तुम्हारे एक मिनट रफीक कुरैशी साहब, अगर नहीं आ जा सकते हुजूर तो फिर ये आपके कासिम ननौतवी साहब मदरसा दारुल देवबंद कैसे पहुंच गए और वहां जाके झगड़ा मिटा के फिर वापस आ गए? अच्छा, फिर थानवी जी के दादाजी कैसे मिठाई लेकर पहुंच गए और उनसे बड़ी बी से बोल रहे हैं कि बी तुम किसी से बोलना नहीं, बताना नहीं, हम इसी तरह रोज आया करेंगे। देखिए आप अधूरी चीज पढ़ते हैं इसलिए आप, अरे ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। आप अगर थानवी जी के दादा सुनिए, अगर थानवी जी के दादा मिठाई लेके ना पहुंचे हो तो मुझे आप गिरफ्तार कर लीजिएगा, थाने में बंद कर दीजिएगा, और क्या है? आपको इल्म नहीं है उसके बारे में, वही बात के लिए फिर आप बता दीजिए। अगर मुझे कम इल्म है तो आप पूरा मुझे इल्म बता दीजिए। आपको आप पूरी इल्म के लिए आप पूरी किताब पढ़िए तब आपको पूरा इल्म होगा। आगे पीछे से दाएं बाएं से ऊपर नीचे से आप मुझे पढ़ के बता दीजिए। इल्म जहन्नम ले जाने के लिए काफी है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये तो तुम्हारे मौलवी बताते हैं। काफी है, सुन लीजिए रफीक कुरैशी साहब, चीज के लिए जी मेरी बात, रफीक कुरैशी साहब, चीज के ये तो तुम्हारे मौलवी बताते हैं। पूरी बात आपको पूरी बात समझना बहुत जरूरी है नूर भाई। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पूरी बात नहीं, आपको नहीं इल्म नहीं है, आप पूरी बात जीरो। थानवी के दादा थे जो कि एक काफले में मर गए थे, उनको लोगों ने मार दिया था, कत्ल कर दिया था, मगर उन्होंने लिखा है शहीद हो गए थे, मगर मैं कहता हूँ मर गए थे वो, ठीक है। आपका मुंह है, आप जो कह दीजिए। ये तो आपको बुरा लग रहा है क्या? जानते हैं आपको बुरा लग रहा है क्या रफीक कुरैशी साहब? आपको बुरा लग रहा है ना? नहीं बुरा लगने वाली बात नहीं। हमको इंसान जिससे मोहब्बत करता है, सुनिए, इंसान मोहब्बत करता है उसके लिए थोड़ा सा ना कच्चा अल्फाज सुनना बर्दाश्त नहीं करता। किसी के बारे आप अगर हुजूर के बारे भी कच्चा अल्फाज करिएगा तो भी मैं बर्दाश्त तो भी मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। मेरे अकाबरीन के बारे करिएगा तो भी मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। अच्छा तब सुन लीजिए, फिर आपके मौलवी रशीद अहमद ये मौलवी इस्माइल देहलवी ने जिसको तुम शहीद कहते हो, फिर इसने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये क्यों लिखा कि माज़अल्लाह हुजूर जो है वो मरकर मिट्टी में मिल गए? आप पढ़े लिखे नहीं है, तुम ज्यादा पढ़े लिखे हो ना, आप जाहिल है। तुम पढ़े लिखे हो तो तुम समझाओ। क्या समझे? आप समझने का कोशिश नहीं करते तो इतने हमारे बड़े बड़े उलमा आपको समझाना चाहते हैं, आप समझने का कोशिश नहीं करते। तुम्हारे किसी बड़े उलमा में हिम्मत नहीं जो नूर हसन से बात करे? बहुत हिम्मत है, लेकिन क्या है, जाहिलों से मुंह लगाना अपने आप को। देखो जाहिल तो तुम हो पढ़े लिखे, दुनिया की इतनी तालीम पढ़ गए, दीन की कुछ भी जो है तुमने तालीम नहीं सीखी, सबसे बड़े जाहिल तो तुम हो यार। आपसे बहुत अच्छी हमारी तालीम है, आप मुझसे कुछ नहीं है। आप अरे तुमने सिर्फ दुनिया की तालीम हासिल की है और इतने बड़े ओहदे पे पहुंच गए और पुलिस बन गए। आपके अंदर जीरो। अरे अगर सरकार के पुलिस बने होते, सुनो, सरकार के सिपाही बने होते तो क्या अच्छा था? अल्हम्दुलिल्लाह। सरकार की नौकरी करते तो क्या ही अच्छा था? सरकार की गुलामी करते, सरकार की नामों से रिसालत पर पहरा देते तो क्या ही अच्छा था? अल्हम्दुलिल्लाह है। नहीं हो, झूठे हो, एकदम है, झूठे तुम हो।
भाई मैं तो झूठा हूं। तुम बखाते हो। मैंने अभी तक कोई ऐसी झूठी बात बोली हो तो बताओ, तुमने आते ही सारी बात जितनी भी बात आपने कही, तुम बोले कई सब झूठ की बुनियाद पर कही। तुम बोले ये वो तुम बोले शाहिद नाम आ रहा है, तुम बोले रफीक कुरैशी साहब। आप पढ़ करके समझना ही नहीं चाहते हैं, सिर्फ अपनी किसी मौलवी को लाइन करो। मैं लफाजी नहीं करता, सिर्फ लफाजी बात करते हैं। देवबंदी मौलवी को लाइन करो। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे देवबंदी मौलवी आपसे क्या बात करेंगे? आज से नहीं, क्या बात कर रहे हो? के अंदर यूट्यूब पर सुनते सुनते आपका जो बयान बात होती है सुन सुन के पक गया हूँ मैं। ऐसा है, पक नहीं गए। उन्होंने जो तुम्हारी वर्दी उतारी है ना, कि आप तुम्हारे लोगों ने तुम्हारी वर्दी और टाइट उतारी है ना, तो उससे तंग आ गए तुम। तुम्हारे देवबंद के जो मुनाजिर लोग हैं, जो तुम्हारे देवबंद के मुद्दा लोग आते हैं, उन्होंने जो तुम्हारी वर्दी और पैंट उतारी है ना, इससे तुम तंग आ गए कि यार ये हर बार चड्डी बनियान उतरवा जाते हैं। नहीं, मैं तो सब देखता हूँ किसकी उतरती है, लेकिन क्या है आपके 10-15 को जो है कमेंटेटर है माशाअल्लाह, उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम क्या माशाअल्लाह देख रहे हैं। माशाअल्लाह वो सही माशाअल्लाह कहते हैं। पर भी माशाअल्लाह, आना वाली बात पर भी माशाअल्लाह। वाह रे वाह, कमेंट करने वाले लोग हैं आप। अरे हम रसूलुल्लाह की शान आज़मत बयान कर रहे हैं, तो जब रसूलुल्लाह की शान आज़मत बयान होगी तो माशाअल्लाह सुभान अल्लाह लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? अजमत बयान करो, अजमत ही बयान कर रहे हैं रफीक कुरैशी साहब। किसी का ऐब को बयान मत करो। सबसे पहले सुन्नत आप ये बोलते हैं किसी ऐब को रफीक कुरैशी साहब अगर पैसे वाले होंगे ना तो आप अपने लिए होंगे। मना फरमाया, सुनिए रफीक कुरैशी साहब, ऐब को बयान करना मना फरमाया, ये अपना बयान करते हैं। अरे यार क्यों तुम वही हरकतें कर रहे हो जो तुम थाने में करते हो? हरकतें नहीं कर रहे हैं। थाने से जरा कभी बाहर भी निकला करो, कभी रसूलुल्लाह के गुलाम भी बन के दिखाओ। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सूद कितनी बार लिया लोगों से? रिश्वत कितनी बार लिया? लेकिन लफाजी रिश्वत कितनी बार ली है तुमने? कसम खा के बोलो कि रिश्वत तुमने ली है कि नहीं ली है लोगों से? जितनी बार तुमने तुमने रिश्वत ली है कि नहीं ली है? अच्छा जितनी बार मैंने झूठ कहा उतनी बार रिश्वत ली। अच्छा उतनी बार तुमने रिश्वत ली है? जिंदगी में झूठ जितना कहा। हाँ यानी पता चला कि तुम रिश्वत खोर हो, रिश्वत लेते हो लोग। अल्हम्दुलिल्लाह तुमने जितनी बार अच्छा नहीं खुदा के कसम खा के बोलो तुमने लोगों से कितनी बार रिश्वत ली अपनी जिंदगी? अब मैं कसम खाऊं और तुम्हें अपना ऐप बताऊं, ये कहाँ की वसूल है? यानी रिश्वत लेते हो? लेकिन ये नफरत क्यों लेते हो रिश्वत यार? क्यों लेते हो रिश्वत की दुकान? मुसलमानों से कितनी बार रिश्वत ली है? आपको मैं जो कह रहा हूँ ये नफरत की दुकानदारी मैं कह रहा हूँ भाई, देवबंदियों से और मुसलमानों से कितनी बार रिश्वत ली है तुमने? ये नफरत की दुकानदारी बंद करो। मैं कह रहा हूँ देवबंदियों से खोलते हैं ना, हेलो मेरी बात सुनो पहले, ये दुकान आप खोलते हो ना, शटर उठाते हो और उठाने के बाद बोलिए क्या चाहिए, किस पर चाहिए, नूर बसर, ये बसर, उस पर चाहिए, इस पर, ये जो आप रट चुके हैं ना लफ्ज, इस पर कम से कम अपने एक दिल से सोचिए कि आप जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। मैं सही कह रहा हूँ। दुनिया बच्चा नहीं जना है जो मुझसे हमारे आपसे जन्म लेने से पहले जन्म ले चुका है, लेकिन बताइए वो कौन सा बच्चा लेके आइए? आपका बच्चा है? आपका बच्चा है? मुंह नहीं लगा? आपका बच्चा है? बोलो आपका बच्चा तो स्कूल में पढ़ रहा होगा, उसने मदरसे का मूवी नहीं देखा होगा। तुम्हारा बच्चा तो स्कूल में पढ़ता होगा, लेकिन आप तुम्हारा बच्चा तो स्कूल में पढ़ता होगा, उसने शायद मदरसे का मूवी ना देखा हो ढंग से। किसने? तुम्हारे बच्चे ने। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सभी बच्चे मदरसे से फारिग हैं। मदरसे से फारिग हैं? जी हैं, पढ़े लिखे हैं। सही में? इस तरह नहीं है। सही में मदरसे से पढ़े लिखे? जी देवबंदियों के मदरसे? अरे देवबंद से हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, देवबंद से फारिग नहीं होंगे तो कहाँ से? अच्छा देवबंद का माना बता दीजिए। आप बता दीजिए, हमें नहीं मालूम। देव का माना शैतान, भूत, बंदी का माना पुजारन, तो शैतान की पुजारन का मतलब बता दीजिए। हुर्मत वाली मस्जिद, इज्जत वाली मस्जिद। तो आप देवबंद को कैसे गलत बता दिए? आप अपने किसी आलिम और देव के माना शैतान, भूत का मतलब? देव के माना शैतान, भूत, वो तो तुम्हारी अपनी लफाजी है। ऐसे कैसे लफाजी है? सही तो अपनी लफाजी है ना, आप चाहे जो बना दें। मदरसा दारुल देवबंद में जब बाबा रामदेव पहुंचा तो उसने कहा कि मैं ऐसी पावन धरती पर आया हूँ जहाँ पे देवों की बंदगी की जाती है।
तो वहाँ सबके सब ऐसे सुन रहे थे, किसी ने भी कुछ नहीं कहा। बंदगी करते हैं कि खुदा की बंदगी करते हैं। लफाजी नहीं है, झूठ नहीं है। अगर झूठ हो तो मुझे अरेस्ट कर लीजिएगा पुलिस वाले साहब। क्या करिएगा? अरेस्ट कर लीजिएगा मुझे, अगर ये झूठ हो बात। अब अगर ये मैंने बात झूठ बोली तो मुझे अरेस्ट कर लीजिएगा। कहाँ बताते, कहाँ आप मुझे अरेस्ट कर लीजिएगा। हाँ मैं बता रहा हूँ, दोबारा से बता रहा हूँ। अभी रुको। अगर ये सही हुआ तो देवबंदी से तौबा करोगे अपने बाल बच्चों के साथ, पूरे परिवार के साथ? तौबा तो आपको करना पड़ेगा एक न दिन। अरे मैं अपना पूरा एड्रेस बता रहा हूँ तुम्हें, तुम मुझे अरेस्ट कर लेना अगर ये बात झूठी हो तो। अगर ये बात बाबा रामदेव ने ना बोली हो, बाबा रामदेव बहुत सारी बात बोलते हैं। अभी नरसिंह आपका भाई एक बात बोल करके गया ना भाई, आपका भाई है वो, आपका जो है रिश्तेदार है, आपके रिश्तेदारों ने आपके देवबंदी ने कहा भाई बड़ा बात बोल करके गया ना। ऐसा करो रफीक कुरैशी साहब, आप दिमाग खराब कर रहे हो। तुम दिमाग खराब आपका हो चुका है जी, इलाज चाहिए आपको। तुमको इलाज चाहिए, बरेली शरीफ आ जाओ, झारखंड में बरेली शरीफ आ जाओ, इलाज करवा देंगे हम तुम्हारा। तुम्हारा दिमागी इलाज भी हो जाएगा और तुम्हारा रूहानी इलाज भी हो जाएगा। रूहानी इलाज जो है, रूहानी इलाज दरगाह आला हजरत से होगा इंशाअल्लाह, मंजर इस्लाम से होगा, ठीक है? हरी बात समझे। और जो तुम्हारा दिमागी इलाज है वो वहाँ के अस्पताल से होगा। मैं ऐसी बात कहूंगा फिर से आपको, ये नफरत का कारोबार बंद कर। नफरत का बाजार तुमने खोला है, नफरत की कारोबार, नफरत का बाजार देवबंदियों ने खोला है। अच्छा चीज नहीं है, नफरत का बाजार देवबंदियों ने खोला है। अपने अंदर इसको अपना कोई खाना मत समझो, समझिए अपने अंदर बात को फिक्र करो, बात को सुनो समझो, सुनो अपने अकाबिरीन बात करो कि मैं ऐसी ऐसी बातें करता हूँ, कहाँ तक सही है गलत है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अकाबिरीनों से बात करो। तुम्हारे अकाबिर में अगर कोई है मुझसे बात करने वाला तो लेके आओ। आपके अकाबिर भी आपसे शर्मिंदा हैं। माज़अल्लाह लानतुल्लाह लेके आओ मेरा एक अकाबिर जो मेरी वजह से शर्मिंदा है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ऐसी कोई बात नहीं जिससे वो शर्मिंदा हो, मेरा कोई ऐसा अकीदा नहीं, मेरी अभी तक कोई ऐसी किसी चैनल पे रिकॉर्डिंग नहीं। सुनो रफीक कुरैशी साहब, तुम्हारा थाना नहीं है जो यहाँ तुम अपनी बकवास चला सको। बकवास नहीं चला रहा हूँ, ये रसूलुल्लाह गुलाम बात कर रहा है, मैं मौत से नहीं डरता, मैं मौत से नहीं डरता हूँ। जुबानी लफाजी नहीं चलेगी, मैं मौत से नहीं डरता हूँ रफीक कुरैशी साहब से। आपको अगर मैं मुजरिम हूँ, अगर मैं झूठ बोला हूँ, जितनी बातें मैंने तुमसे कही है तो मुझे अरेस्ट कर लेना, मैं बोल रहा हूँ। तो आप जब झूठ नहीं बोलते हैं, ठीक है, चलिए आपका कहना है कि मैं जितना भी बात कहता हूँ सही कहता हूँ, झूठ नहीं कहता हूँ। हाँ, उस टाइम में मैंने कहा था बैठ करके क्यों नहीं इस बात को अपने आलिम उलमा से लाइए बुला के अपने आलिमों में इकट्ठा कर लीजिए। मैंने तो तुम्हारे ताल्लुम देवबंद के लोगों को कॉल किया है, कोई बड़े कोई आपके जो बड़े आलिम उनसे तुम्हारा कोई इंस्पेक्टर था के बाद, एक और तुम्हारा कोई इंस्पेक्टर था जो दिल्ली का रहने वाला था, अब्दुर्रहमान या अब्दुर्रहीम ऐसी कुछ नाम है उनका, ठीक है? उनसे भी मेरी बात हुई थी और उन्होंने ईद के बाद बात करने का वादा किया था। अब देखिए वो इस वादे को कब पूरा करते हैं और कहाँ बात करते हैं, ठीक है? आपको तो ऐसा ये लड़ाई झगड़ा मत कीजिए, ठीक है? ये लड़ाई झगड़ा मत कीजिए। आधा घंटा तुमने मेरा बर्बाद कर दिया, मैं तुम्हारा कॉल काट रहा हूँ। आपको तो और भी रफीक कुरैशी साहब अकाबिरीन से लिखा के लाइए, आपने लिखा के दिया? उधर से तुम भी तो दारुल देवबंद से लिखवा के लेकर आओ और मौजूद सुनो कि किस मौजूद पर बात करोगे। अरे पहले मौजूद बताइए ना, पहले मौजूद बताइए किस मौजूद पर बात करेंगे और उधर से इंशाअल्लाह मेरे तरफ से सारे मैं अल्हम्दुलिल्लाह तुमसे बात करूंगा, मेरे तरफ से सब तैयार है। मुझे नहीं बात कर, मैं अपने अकाबिरीन की तरफ से ही बोलता हूँ, ऐसे थोड़ी बोलता हूँ मैं। गलत बोलते हैं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये अकीदा नहीं है जो आपका, मेरे जो उस्ताद है, मेरे जो बुजुर्ग है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन्हीं के सपोर्ट में रहता हूँ। नहीं है नूर बाबू, ये आपका बुजुर्गों का भी अरे यार पुलिस सर्विस साहब जी, समझ ना, आप सिर्फ ऐसा करो कौवा खाओ, मिलिए लफाजी कौवा बिरयानी खाओ वहीं बना के, वो ईद का दिन है, हो सकता है तो खाओ तुम कौवा बिरयानी। तुम्हारे रशीद अहमद गंगोही साहब ने इसको खाना तमाम बना दिया है, खाइए, अच्छा खाइए कौवा बिरयानी। अरे वाह वाह, चलो अल्लाह का शुक्र है, कौवा खा के भी अल्लाह का शुक्र खाएंगे, समझे ना? अरे अल्लाह के नबी ने तो मना फरमाया, इसको हराम बताया, ये पाक चीजों में से नहीं है, समझे ना? अल्लाह का शुक्र है कि ईद के दिन भी आप
कौवा खा के ईद के दिन भी आप जो है कचरा कर रहे हैं। ला हौला वला कुव्वता। अच्छा तो मैंने क्या कर रहे हैं? अरे यार पुलिस आखिरी में तुम्हारा पुलिस स्टेशन नहीं है। आपको यही बोल रहे हैं कि आप अपनी अकल का ठिकाना अपने अकाबिरों से मिलके अपनी अकल का ठिकाना लगवाइए। क्यों बुरा लग रहा है क्या? जी नहीं, मुझे बुरा अपने लोगों से मना करो ना कि क्यों आते हैं मेरे पास दलील और रुसवा होने, और तुम भी आए हो दलील और रुसवा होने के लिए। मैं मुझे एक भी बात का